के सारे लोग जाग रहे हैं या इज देयर एनीवन जो सो रहे हैं अभी भी? No, ma'am. Okay, so everyone is active, right? Yes. Yes. Okay, so let's start करते हैं हम. चलो अभी आप लोग फटाफट आंसर दो. 5 किंगडम्स कौन से थे? Monera. Kingdom Monera, Protista, Protista, Animalia. आराम से इन्हें सीक्वेंस प्रॉपर वे में बोलो. Plant. Animalia. Animalia. डन. इतने Yes. तक क्लियर है? शॉर्ट में Yes. फटाफट रिवाइज करेंगे. ओके, नाउ किंगडम प्लांटे वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 parts. 2 parts. which one? Cryptogams and phanerogams. Phanerogams. Okay, cryptogam is further divided into 2 2 parts. parts. which one? Non-vascular plants and vascular plants. Very good. Non-vascular is further divided into 2 parts. 2 parts. which one? Thallophyta and Bryophyta. Very good. And vascular plant is divided into 1 1 part. which one? Pteridophyta. Very good. Clear है यहाँ तक? Next, Yes. phanerogam is further divided into 2 parts. 2 parts. which one? Gymnosperms and angiosperms. Okay, gymnosperm is further divided or not? Not divided. No. Okay, and angiosperm? 2 parts. 2 parts. Okay, which one? Dicotyledon and monocotyledon. Start from monocotyledon, okay? Monocotyledon and dicotyledon. Dicotyledon. Clear है यहाँ तक? Yes. Is Yes. there any doubt to anyone? No. सबने रिवाइज किया? किसी को कुछ डिफिकल्टी आई? No. ओके, ठीक है. अभी हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं. ओके, अभी हमने जो क्रिप्टोगैम में पढ़ा, दैट क्रिप्टोगैम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा. ठीक है, नॉन वस्कुलर वाला पार्ट. So now we'll start with non-vascular part, which is further divided into 2 division, that is thallophyta and bryophyta. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, अभी हम लोग हर एक टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी जैसे अभी तक हमने पूरे चैप्टर का आउटलाइन देखा. अब यहाँ पे विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्रिप्टोगैम. तो यहाँ पे ऐसा हेडिंग दो, क्रिप्टोगैम्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट डिवीजन से डील करेंगे, दैट इज थैलोफाइटा. बोर्ड विजिबल है सबको? Yes. Yes. यस. तो ऐसे आप लिखिए नोटबुक में, ऐसे हेडिंग दीजिए, क्रिप्टोगैम में फर्स्ट डिवीजन दैट इज थैलोफाइटा. Now, as I told you, every word has some meaning, right? Here you can see also this word is divided into 2 parts. One is thallo and the another one is phyta. What does it mean? Actually, thallo stands for thallus body. Okay, so thallo means thallus and thallus stands for flattened. Do you understand what do you mean by flattened? Means चपटा. Okay, flat body. तो इसमें जो प्लांट्स आते हैं, दे शो द फ्लैटेंड बॉडी. प्लांट्स कैसे होते हैं? वो फ्लैटेंड होते हैं. एंड फाइटा स्टैंड्स फॉर प्लांट्स. तो आप यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हो, या तो साइड में ब्रैकेट करके भी लिख सकते हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो. दैट इज थैलस, मतलब फ्लैटेंड, एंड फाइटा मीन्स plants. You can write in both the way. Clear till here? Yes. Now we'll Yes. see कि थैलोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं, हाउ दे आर. अभी हमने देखा कि क्रिप्टोगैम का जो फर्स्ट डिवीजन है, वी आर डीलिंग विद दिस थैलोफाइटा, those flat body plants. If anyone asks you what do you mean by thallophyta, so just remember this one thing, that thallus stands for flattened and phyta means plant. So in thallophyta, all the plants will be with flat body. Okay, clear till here?
Yes. Now Yes. just below this we will write one by one all the characteristics of this thallophyta. Okay, मतलब इस डिवीजन में जितने भी प्लांट्स फॉल करते हैं उनके कैरेक्टर्स कैसे, हाउ दे आर एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल. आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, Yes. right? Yes. Aquatic means the plants will survive in water and Water. terrestrial survive on land. Okay. So write one by one point here. Okay. Write as first point or just give us dot. So the plants in Thallophyta are mostly aquatic. Okay. ऐसे एक के बाद नीचे पॉइंट पॉइंट लिखते जाओ ताकि वो क्लियर कट पढ़ते वक्त कैरेक्टर सारे आपको समझ में आए. ओके, सो द प्लांट्स इन थैलोफाइटा, ऑल द थैलोफाइट, beside this few are epiphytes. Okay, few are epiphytes. Now phytes stand for again plants. Okay, phyte stands for plants. Now what do you mean by this epi? Have you ever heard the word of epidermis? सुना है आप लोग ने कभी? Yes. तो एपिडर्मिस देखो वहां पे कैसा होता है, डर्मिस स्टैंड्स फॉर स्किन. Skin. ओके, yes, epi stands for upper layer. Okay, so epi means anything we are talking about upper, outer. Okay, किसी चीज के ऊपर वाला. So epidermis means outer layer. Okay, outer skin. Similarly here epiphytes means, epi मतलब होता है किसी चीज के ऊपर. Okay, and phytes means plant. तो few are epiphytes मतलब ऐसे plants जो दूसरे plant के ऊपर grow कर रहे हैं. This is called as epiphytes मतलब above. ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं. epi stands for above. So epi stands for above and phytes stand for plants. ठीक है, तो ये प्लांट जो होते हैं वो थोड़े थोड़े दूसरे प्लांट के ऊपर भी ग्रो करते हैं. क्लियर दिस मच? Yes. Yes. किसी को कुछ डाउट यहाँ पे? बॉयज लोग की अगेन आवाज नहीं आ रही है. चलो नेक्स्ट पॉइंट. In Thallophyta, some thallophytes grow symbiotically. Okay, so some are sorry, some grow symbiotically. Now we'll see what does this word mean. Okay, इसके पहले आपने कभी symbiotic word सुना है स्टूडेंट्स? इसके पहले सुने हो कभी ये वर्ड? बेसिकली symbiotically मतलब क्या होता है स्टूडेंट? Sym stands for मतलब किसी चीज का एडिशन. बायोटिकली मतलब होता है लिविंग एंड सिम मतलब यू कैन कंसीडर. लाइकेन सुना आपने इसके पहले? लाइकेन मतलब आप ना दो डिफरेंट प्लांट मिक्स होके एक जैसे दिखते, एक जैसे ग्रो करते, दैट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिकली मतलब साथ में. ठीक है, जैसे एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके दे रहा है तो दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिकली. तो सिम मतलब इन सिनर्गिस्टिक वे मतलब सिन. कैसे बताऊं? सिम मतलब होता है ना एडिशन. ओके, सो यहाँ पे दो प्लांट्स जो है वो साथ में ग्रो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज symbiotically. Biotically stands for living. Sim मतलब साथ में, you can say together. Okay, तो थोड़ा सा स्पेस देखेंगे. So they are symbiotically and epizoic. अब what do you mean by this epizoic? देखो what is the difference between this epiphytes and epizoic? एपी दोनों में, एपी मीन्स अबव, सेम यहाँ पे भी अबव.
अब फाइट का मतलब यहाँ पे था स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे हम थैलोफाइटर्स की बात कर रहे हैं ना, दे ग्रो ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, ओके, अबव द डिफरेंट प्लांट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एपीफाइट्स। लेकिन एपिजोइक मतलब होता है ऐसे प्लांट जो दूसरे एनिमल के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ओके, दैट इज ग्रोइंग और लिविंग नॉन पैरासिटिकली ऑन द एक्सटीरियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। अब नॉन पैरासिटिकली मतलब समझते हो? सॉरी, नॉन पैरासिटिकली ग्रोइंग ऑन द डिफरेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो उसके ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड नहीं है, ओके। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपिफाइट्स। एपिफाइट्स मतलब दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं थैलोफाइट्स, एंड एपिजोइक मतलब डिफरेंट एनिमल के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। टिल हियर क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अभी यहाँ पे हमने देखा था मोस्टली दे आर एक्वाटिक। अब एक्वाटिक में भी आप हमको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर, राइट? वन इज फ्रेश वाटर एंड अनदर वन इज मराइन। यस, सो दिस दिस थैलोफाइट्स रिप्रेजेंट, मतलब इट प्रेजेंट इन बोथ द वाटर, सो दे आर आइदर मराइन और फ्रेश वाटर। पॉइंट्स के नीचे नीचे पॉइंट्स लिखो, और ये जो वर्ड्स के मीनिंग है इसको ब्रैकेट में चाहिए तो साइड में लिख लो, या नीचे लिखोगे तो भी चलेगा। डन? अब Yes. मरीन या फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं। अब हमने देखो यहाँ पे देखा था सिम्बायोटिकली, मतलब क्या, किसी दूसरे प्लांट के साथ मिलके ग्रो कर रहे हैं, राइट? मतलब एक घर में दो लोग, इट इज लाइक इन दैट वे, ठीक है। मैं मतलब अगर किसी के साथ रह रही हूँ, समझ लीजिए मेरा हस्बैंड है, तो मैं घर का काम कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड जॉब करके आ रहा है, तो इट इज लाइक एक घर में दो जन, एक काम मैं कर रही हूँ, एक काम वो कर रहा है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी सिम्बायोटिकली मतलब दो प्लांट साथ में ग्रो करते हैं। एग्जांपल इज लाइकेन। तो एक जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है, जो कि बाहर का मतलब बोलते हैं ना ऑक्सीजन एयर फिक्सेशन वगैरह करके देता है, और दूसरा जो है फूड प्रिपेयर करके देता है। क्लियर है? तो थैलोफाइट्स में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्लांट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही दिखाते हैं। देयर आर सम प्लांट्स देयर आर फ्री लिविंग, दैट इज फ्री लिविंग, ठीक है। फ्री लिविंग मतलब समझते हो, किसी पे डिपेंड नहीं है। So basically, thallophytes में some plants are free living, some show symbiotic relationship. Okay? जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों प्लांट्स से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ओके। सो फ्री लिविंग, देखो फ्री लिविंग, यहाँ पे ये किसी पे डिपेंड नहीं है, फ्री लिविंग है, खुद से खुद का सारा काम कर रहा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दो प्लांट्स आपस में कनेक्टेड है, तो बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों भी एक दूसरे पे डिपेंड है। क्लियर? यहाँ तक हुआ? Yes. Yes. ओके, नाउ विल सी कि प्लांट की बॉडी कैसे होती है। अब यहाँ पे हमने लिखा थैलो मतलब फ्लैट, राइट? थैलस मतलब फ्लैट। तो यहाँ पे बेसिकली थैलस मतलब कैसा होता है स्टूडेंट्स? अभी आपने देखा था, हमने जब क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, तभी भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम फ्रॉम करते हैं डेवलपमेंट एडवांसमेंट का, तो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, राइट? तो प्लांट के केस में क्रिप्टोगैम वाज द फर्स्ट इन विच डिवीजन थैलोफाइटा इज द फर्स्ट, राइट? तो यहाँ पर डेवलपमेंट सबसे कम होगा, एडवांसमेंट या सबसे ज्यादा होगा? Come. वेरी गुड, करेक्ट है। यहाँ पे एडवांसमेंट और डेवलपमेंट सबसे कम होगा बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्लांट, ओके। तो यहाँ पे भी जैसे हम नॉर्मल ट्रीज वगैरह देखते हैं ना, तो वो बाद में वो सारा ना एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में सारे ट्रीज फॉल करते हैं, ठीक है। लाइक फ्रूट बियरिंग प्लांट अगर हम बात कर रहे हैं तो दे आर एंजियोस्पर्म, ओके। तो कैसा होता है, अभी आप देख सकते हो, अभी आप नॉर्मल झाड़ देखते हो तो आपको वहाँ पे डिवीजन समझ में आता है। ये स्टेम है, ये लीव्स है, नीचे इसके रूट्स है, ऊपर फ्लावर है, ठीक है। तो ये क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है? तो ये आगे आगे जो आपका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है ना स्टूडेंट्स, ये ऐसे वाले प्लांट्स उस कैरेक्टर में फॉल करते हैं। अभी आपने ऐसे भी प्लांट्स देखे होंगे लाइक फन वगैरह, पता है आपको, जो ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे ना फ्लावर होता है ना फ्रूट होता है। तो वहां पे कैसा होता है स्टूडेंट्स, तो थैलोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं ना, दे आर
अनडिफरेंशिएटेड, उनकी प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है, तो मतलब ऐसा आपको साफ साफ फर्क नहीं समझ में आएगा कि हाँ ये इसका रूट है, हाँ ये इसका स्टेम है, ये इसका फ्लावर है. सो द बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. Okay. So here you write plant body is thalloid. Thalloid मतलब होता है that is undifferentiated. Undifferentiated into root and leaves. लोग तो उसमें आपको देख के समझ में आएगा कि मतलब आपको देख के समझ में नहीं आएगा कि इसका रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है. So that is called as undifferentiated. आपको देख के पता ही नहीं चल रहा है कि इसका रूट कौन सा है, मतलब सारा का सारा प्लांट ना पूरा एक जैसी दिख रहा है. अगर जिसके जिसके पास टेक्स्ट बुक या प्लीज आप डायग्राम देख सकते हो. डन? समझ में आए यहाँ तक स्टूडेंट? Yes. Yes. ओके, अभी सबका लिख के हो गया क्या? तो मैं रफ करूँ इधर, स्पेस नहीं बिकॉज Yes, ऊपर वाला ma'am. पोर्शन सबका कंप्लीटेड. ओके. Yes. तो बेसिकली थैलोफाइटा में जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे आपके कैसे, दे आर अनडिफरेंशिएटेड. रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है, कुछ आपको फर्क ही नहीं पता चल रहा है. दे आर लुक लाइक सेम, पूरा सेम ही लगते हैं. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट, अभी यहाँ पे हमने देखा कि दे आर अनडिफरेंशिएटेड. इसके साथ ही अभी जो प्लांट्स अनडिफरेंशिएटेड, आप मुझे बताओ प्लांट की हाइट वगैरह कैसे डिफाइन होती है? विद द हेल्प ऑफ स्टेम, राइट? जितना बड़ा स्टेम उतना बड़ा प्लांट का हाइट. तो यहाँ पे वो सारी चीजें अनडिफरेंशिएटेड है, सारा सेम है. तो ये बेसिकली जो ये प्लांट्स होते हैं ना, दे आर वेरी स्मॉल. ओके. सो दे आर स्मॉल यूनिसेलुलर बिकॉज लेस डेवलप है ना, तो ज्यादा कुछ मतलब अच्छे कैरेक्टर्स नहीं. समटाइम्स दे आर मल्टीसेलुलर बट मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर. ओके. तो थैलोफाइट्स आर स्मॉल यूनिसेलुलर और समटाइम्स मल्टीसेलुलर. अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगेन, दे में शो ब्रांचिंग. ब्रांचिंग भी कभी कभी दिखाते हैं और अनब्रांचिंग भी कभी कभी दिखाते हैं. तो किसी किसी प्लांट्स में ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी प्लांट्स में नहीं होते हैं. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes. ओके. अब यहाँ पे हमने देखा बेसिकली थैलोफाइटा कैसे, अभी हमने देखा स्मॉल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. तो अगर ये स्मॉल हुआ स्टूडेंट्स, तो इट विल कम अंडर माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक समझते हो, मतलब एक्सट्रीम स्मॉल वाले प्लांट्स, राइट? So if they are so small, so they come under microscopic. अब probability, we are writing everything in probability. तो इसके कैसे मतलब some plants के character it is like microscopic, some are with जो multicellular है थोड़े से बड़े, they are big, they comes under macroscopic. So मतलब these are the variation that we are able to see in this division. Clear है? सबको समझ में आ रहा है किसी है? हर्ष, अरिन, प्रणय, सार्थक, बताओ इतने सारे लोग हैं, आवाज किसी की भी नहीं आ रही है. क्लियर है यहाँ तक? Yes. 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 नाउ लास्ट yes. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. हाँ बोलो बच्चा. मिस फंगाई में मल्टीसेल्युलर आते हैं, तो प्लांट में यूनिसेल्युलर कैसे आएगा? कैसा होता है स्टूडेंट, ये हमने जो अभी तक फंगाई वो सब देखा था ना, दे आर अबाउट द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स. यहाँ पे वी आर डीलिंग विद द प्लांट्स किंगडम, राइट?
तो प्लांट्स में भी तो वेरिएशन आना शुरू हो गया ना, मतलब स्टार्टिंग में ऐसे प्लांट, यहाँ पे तो हम पूरा अलग किंगडम डील कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? अभी जैसे हमने जो पहले लिया था फर्स्ट वाला प्रोटिस्टा, दैट इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, राइट? उसके बाद वाला सॉरी मोनेरा जो था हमारा, दैट इज प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। yes, जैसी प्रोटिस्टा है दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। बट हियर हम लोग ये प्लांट्स का किंगडम, प्लांट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया, राइट? yes, बैक्टीरिया वगैरह से आप नहीं डील कर सकते ना। अब जैसे कि प्लांट्स में अब अगर अभी यहाँ आप देखोगे तो प्लांट्स में मल्टी सेलुलर या फिर फंगाई भी आपका मल्टी सेलुलर है, बट एनिमल्स में भी तो कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर है, तो वहां पे यू कांट कंपेयर द एनिमल्स विद दैट प्रोटिस्टा एंड ऑल, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? yes, तो देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे टोटली वी आर डीलिंग विद द डिफरेंट किंगडम। हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा किंगडम अलग लेके बैठे, पूरा प्लांट सिस्टम का ही बात कर रहे हैं। सो वी कैन नॉट कंपेयर एट दिस टाइम दैट टू किंगडम्स टुगेदर, क्योंकि एनिमल्स में भी बहुत सारे एनिमल्स है जो यूनिसेलुलर है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि प्लांट्स तो मल्टी सेलुलर है तो एनिमल वापस यूनिसेलुलर कैसे आ गया, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हमने कल ही उसे लिखे थे, राइट? yes, So here the kingdom is totally different. समझ में आया? okay, miss, yes, यस बच्चा, और किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ अभी हम लोग दो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल समझते हो सब लोग? yes, Yes. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? protection, Protection. वेरी गुड, प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, ठीक है? तो अभी यहाँ पे जो थैलोफाइट्स है ना स्टूडेंट्स, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप नॉर्मली जो प्लांट्स का सेल वॉल देखते हो दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? peptidoglycan, Peptidoglycan. ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम थैलोफाइटर्स का देखेंगे ना सेल वॉल इज, यहाँ पे सेल वॉल जो है इट कंटेन्स आइदर पॉलीसेकेराइड्स लाइक सेलुलोज और ग्लूकोज, ठीक है? सो सेल वॉल कंटेन्स, सेलुलोज नहीं सुना आप लोगों ने प्लांट के सेल वॉल में? सेल वॉल कंटेन्स आइदर पॉलीसेकेराइड्स, अब पॉलीसेकेराइड्स में भी देयर इज टू probability, either it can be cellulose or glucose। समझ में आया स्टूडेंट्स? yes, तो सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जिसमें पॉलीसेकेराइड्स में भी दो प्रोबेबिलिटी, इट कैन बी आइदर मेड अप ऑफ सेलुलोज और ग्लूकोज। Now we are going to talk that is take place with the help of two. अच्छा, I hope do you know the difference between asexual and sexual method of reproduction? yes, ओके, तो यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन में दो टाइप होते हैं, एक होता है असेक्सुअल जिसके अंदर हमारा कवर होता है वेजिटेटिव मोड। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बताते चलो, पूछते चलो, सब लोग जाग रहे हैं? Yes, yes, ma'am. तो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? तो रिप्रोडक्शन में देयर आर टू टाइप, वन इज असेक्सुअल जिसमें आपका वेजिटेटिव कवर होता है, बट सेक्सुअल में क्या होता है बच्चा लोग? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, तो यहाँ पे आप फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, डन। अब यहाँ पे हमने जो गैमेट्स लिखे स्टूडेंट्स, दैट गैमेट्स भी मतलब वो तीन टाइप के होते हैं, वन इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, आपका जो गैमेट्स है इट इज ऑफ थ्री टाइप, आइसोगैमस, देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, ऊपर लिखो,
ये वाला पोर्शन कंप्लीटेड? Yes. Yes. ओके, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट आपका जो है गैमेट्स वाला, विल सी हियर। यहाँ पे अभी जो सेक्सुअल मीन्स है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा असेक्सुअल में आपका वेजिटेटिव मोड आ जाता है, ओके। और जो सेक्सुअल मोड है वहां पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स जो है आपका दैट इज आल्सो ऑफ 3 टाइप्स, आइसोगैमस, anisogamous, and the last one is oogamous. इतना लिखे। नहीं, सुपर का नहीं। अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि ये तीनों में आपस में मिस क्या एक फर्क मिनट है। लिखने दो। हाँ ठीक है, लिख लो। डन। Everyone done? Yes. Yes. Now we'll see what is the difference between all these 3 terms. अब यहाँ पे आता है बच्चा लोग आइसो। सो आइसो स्टैंड्स फॉर सेम। केमिस्ट्री में आपने देखा होगा ना आइसोमर, Yes. आइसोटोप, Yes. right? So iso stands for same and gametes stands for gametes. ठीक है, तो यहाँ पे साइड में लिख लो gametes stands for gametes and iso stands for same. तो मतलब आइसोगैमेट्स में जो प्लांट्स जितने भी फॉल करते हैं उनके जो गैमेट्स होते हैं दे आर सेम, मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ लुक्स सेम, सिमिलर। क्लियर है? डन। साइड में ऐसे लिख लेना, आइसो मीन सेम, गैमेट्स मतलब गैमेट्स। नाउ इसके नीचे वाला अनआइसो। अब मुझे एक बात बताओ, आप किसी चीज का वर्ड लिखते हो वहां पे अगर आगे आपने यू एन या ए एन लगा दिया तो जस्ट इट मीन्स अपोजिट टू दिस, राइट? तो अनआइसो क्या होता है बच्चा लोग? दैट इज डिफरेंट, ओके, डिसिमिलर। यहाँ पे हमने लिखा सेम, मतलब आइसोगैमेट्स में ऐसे गैमेट्स आते हैं जो सेम स्ट्रक्चर वाले होते हैं, एक जैसे दिखते हैं दोनों। अनआइसो मतलब होता है डिफरेंट गैमेट, ओके। अब डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? शेप एंड स्ट्रक्चर, ये चीज याद रखना, ठीक है? Yes. शेप एंड स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे। सो अनआइसो मतलब डिफरेंट, गैमेट मतलब गैमेट, तो डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेट। चाहिए तो यहाँ पे अगर आगे जगह होगा ना आप लोग के पास, आइसोगैमेट या फिर स्पेस होगा तो वहां पे लिख दो मेल एंड फीमेल गैमेट सेम, ठीक है? किसके रिस्पेक्ट पे बात हो रही है वो भी मेंशन करो। तो आइसोगैमेट्स में लिखो मेल एंड फीमेल गैमेट आर सेम, एंड आइसोगैमेट में लिखो मेल एंड फीमेल गैमेट आर डिफरेंट। डन। अब जो आपका oogamous होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी दो सेम, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है? दो गैमेट होते हैं जिसमें से आपका जो मेल गैमेट होता है दैट इज स्मॉल, आपका जो मेल गैमेट होता है दैट इज स्मॉल एंड मोटाइल, और वहीं पे जो आपका फीमेल गैमेट है दैट इज लार्ज एंड इमोटाइल। समझते हो इसका मतलब? आपका जो मेल गैमेट है वो छोटा और मोटाइल, मोटाइल मतलब मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू डिफरेंट, ठीक है? अब मूवेबल इन द सेंस कैसा, उसको हाथ पैर आ गया क्या? ऐसा कुछ लग रहा है किसी को? मूवेबल विद रिस्पेक्ट टू मतलब रिप्रोडक्शन, अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन हो भी रहा है सो विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विंड, मतलब किसी भी मीडियम को आप कंसीडर कर लो तो मेल गैमेट जो है वो जाएगा वहां पे फीमेल गैमेट के पास, ओके? ये छोटा और मोटाइल है, जो आपका फीमेल गैमेट है दैट इज लार्ज एंड इमोटाइल। बस इतना ही बेसिक डिफरेंस है, याद रखो। डन। इतना हो गया, सबको समझ में आया?
Yes. Yes. ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, अभी लाइफ साइकिल समझते हो आप लोग? तो बेसिकली यहाँ पे जो थैलोफाइटा है ना स्टूडेंट्स, उनका लाइफ साइकिल जो होता है ना, दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मलेरिया का आपको ये पता है, जो मलेरिया पैरासाइट है फीमेल एनोफिलस की वजह से होता है, इतना पता है आपको मलेरिया? Yes. Yes. हाँ, तो उसका लाइफ साइकिल पता है आपको? सुना है आपने कभी? मतलब उसको 2 होस्ट चाहिए रहता है, मतलब No. एक जिसको ह्यूमन बीइंग को मलेरिया है, वहां से उसने ब्लड सक किया, और दूसरे जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसको काटा, तो कैसा फिर वो ट्रांसमिट होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड, वहां पे आप देख सकते हो कि उसके लाइफ साइकिल में जो है 2 होस्ट चाहिए। अब सिमिलरली यहाँ पे जो आपका थैलोफाइटा है, इसका जो लाइफ साइकिल है, इट शोज फेनोमेना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप लिखो, पॉइंट मत लिखना डायरेक्ट, ऐसे नीचे कंक्लूजन कैसे देते हैं हम वैसे लिखो, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो द लाइफ साइकिल शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेट मतलब समझते हो ना, बारी बारी से। ओके, सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, द लाइफ साइकिल शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब वहां पे 2 आता है, एक होता है डोमिनेंट हैप्लॉइड, दूसरा जो है आपका वो है रेड्यूस डिप्लॉइड। ठीक है, देखो मैं आपको पहले ना डोमिनेंट और रिसेसिव समझते हैं आप लोगों को? डोमिनेंट मींस कैसा होता है स्टूडेंट, जो एक दूसरे के ऊपर। ओके, अगर मैं इसका डेली लाइफ में एग्जांपल लूं, तो आपने देखा होगा कि घर में किसी डैड, राइट, जैसे कुछ फाइट वगैरह हो गया तो उसमें से जीतता कौन है? सबके घर का अलग है, राइट। किसी के घर में डैडी डोमिनेंट होते हैं, मतलब लास्ट में उनकी बात मानी जाती है, वही जीतते हैं, उनकी बात सुनते। किसी के घर में वाइफ डोमिनेंट होती है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो यहाँ पे कैसा होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझते हो आप? Yes. दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज डिप्लॉइड, ये गैमेट समझते हो आप? हैप्लॉइड और Yes. डिप्लॉइड। हाँ, Yes. तो बच्चा लोग यहाँ पे भी कैसा है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे 2 जनरेशन आपको देखने मिल रहा है, वन इज हैप्लॉइड एंड द अनदर वन इज डिप्लॉइड। ठीक है, 2 जनरेशन अल्टरनेट कर रहा है, मतलब पहले हैप्लॉइड फिर डिप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड फिर डिप्लॉइड। अब जैसे बेसिकली अगर मैं आपको नॉर्मल ऐसा प्लांट बताऊं, बट ये तो थैलोफाइट है, ठीक है, तो वहां पे कैसा देखने को आपको 2 जनरेशन दिखने मिल रहा है। तो इसमें से भी डोमिनेंट कौन सा है, हमको वो ध्यान देना है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 2 जनरेशन तो इन्वॉल्व है, एक है हैप्लॉइड एक है डिप्लॉइड, बट दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है हमको वो याद रखना है। तो आपका जो हैप्लॉइड फेस है ना स्टूडेंट, इट इज अ डोमिनेंट। समझ में आया? तो डोमिनेंट फेज कौन सा हो गया आपका? हैप्लॉइड फेज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका हैप्लॉइड डोमिनेंट हुआ, रिसेसिव समझा भी आप लोगों को? जो हार मान लेता, जो दबता, जो जिसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है, दैट इज कॉल्ड एज रिसेसिव। समझ में आया? तो जब Yes. आपका यहाँ पे हैप्लॉइड वाला पार्ट डोमिनेंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली डिप्लॉइड वाला थोड़ा सा सप्रेस हो गया, राइट। So that's why it is also called as recessive plus reduced diploid phase. मतलब यहाँ पे अगर जैसे नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लो, आप उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लो, तो ज्यादा किसको आप यहाँ पे जो बोलते हैं ना वैल्यू, ज्यादा कौन सा वैल्यूएबल? हैप्लॉइड फेज, बिकॉज इट इज अ डोमिनेंट फेज, राइट। और आपको जो डिप्लॉइड है, इट इज रेड्यूस्ड डिप्लॉइड फेज इसे बोला जाता है, क्योंकि हमारा हैप्लॉइड डोमिनेंट है। तो ये कैसा हुआ, ये बहुत ही कम वैल्यूएबल है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेड्यूस्ड डिप्लॉइड फेज। क्लियर है यहाँ तक? सबको ये Yes. समझा क्या? ये गैमेट्स वाला पार्ट और लाइफ साइकिल सबको क्लियर है? Yes. पक्का सारे लोगों को समझ में आया? Yes. ओके, किसी को कुछ डाउट है स्टूडेंट्स यहाँ तक? No, ma'am. ओके, तो रफ करूं मैं, ये लिख के हो गया सबका? Yes.
यस ओके, तो यहाँ पे हमने जनरल कैरेक्टर्स देखे थे थैलोफाइटा के। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे हमारे सारे जनरल कैरेक्टर्स कवर अप हो जाते हैं थैलोफाइटा के। तो एक काम करिए अभी, चलो पहले हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, जितने भी जनरल कैरेक्टर्स है, फिर हम लोग आगे वो करते हैं, ठीक है? या फिर चलो स्टार्ट करते हैं आगे का, बाद में रिवाइज करेंगे पूरा होने के बाद साथ में दोनों टॉपिक, ठीक है? ओके, तभी हमने देखा कि हमारा जो जनरल कैरेक्टर्स था थैलोफाइटा का, जिसे अलगे भी कहते हैं, दैट इज कंप्लीटेड। नाउ अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अलगे में भी कितने टाइप होते हैं, राइट? ग्रीन अलगे, ब्राउन अलगे, रेड अलगे, सुने हो ऐसा कभी? So your thallophyta, that is also known as algae, is divided into 3 parts. पहला वाला है ग्रीन अलगे, जिसे क्लोरोफाइसेई कहते हैं। अब क्लोरो स्टैंड्स फॉर क्लोरोफिल। क्लोरो मतलब बच्चे लोग क्या होता है? क्लोरोफिल। अब हमको पता है क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, राइट? Which helps for photosynthesis. Am I audible? यस मैम। मिस वॉइस सुनाई दे ब्रेक हो रहा रहा है है बीच क्या? में। हाँ। ओके, अभी क्लियर है बच्चा? यस। Okay, so basically chloro stands for chlorophyll. We know now कि chlorophyll is present in the plants which are responsible for photosynthesis, right? इतना पता है हमको? Do we know this much? यस So here Yes. chloro stands for chlorophyll that is present in plants, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, राइट? तो क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, कलर क्या है? ग्रीन पिगमेंट, दैट्स दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन अलगे। सो दिस इज साइंटिफिक नेम और ये आपका कॉमन नेम, ग्रीन अलगे। नेक्स्ट, समझ में आया सबको ये? दूसरा वाला जो आपका अलगे, दैट इज फायोफाइसेई। फायोफाइसेई, ठीक है? दिस इज, इसका कॉमन नेम जो है दैट इज ब्राउन अलगे। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, आप रेड अलगे और ग्रीन अलगे याद कर लो, जो बचा हुआ दैट इज ब्राउन अलगे। ओके, एंड द लास्ट वन इज रोहडोफाइसेई, RHODO, रोहडो, सेम नीचे फाइसेई। ओके, सॉरी, जिसका कॉमन नेम क्या है बच्चा लोग? दैट इज रेड अलगे। ओके, रेड अलगे इज द कॉमन नेम ऑफ रोडोफाइसिन। नाउ देखो, क्लोरोफाइसिन तो आपको याद रहेगा, क्लोरो से क्लोरोफिल आता है, दैट इज ग्रीन कलर, दैट्स व्हाई क्लोरोफाइसिन इज कॉल्ड एज ग्रीन अलगे। ओके, अब फिर रेड अलगे पे जाओ। रेड अलगे का जो नाम है दैट इज रोडोफाइसिन। अब आर से आप यहाँ पे, एक्चुअली ये पिगमेंट, ये भी पिगमेंट के ऊपर है, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है यहाँ पे, जो कि रेड कलर का होता है। बट उतना अगर आपको नहीं याद आएगा तो सिर्फ आप आर याद रखना, ठीक है? आर से रोडोफाइसिन, आर फॉर रेड। क्लियर है इतना? Yes. यस ओके, Yes. तो आर से आप यहाँ पे याद रखना, आर से रोडोफाइसिन, आर से रेड अलगे। तो अब जब दोनों अलगे का आपको साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम याद हो गया, तो जो बचा हुआ है वो कौन सा हुआ अल्टीमेटली? दैट इज ब्राउन अलगे। क्लियर है? इतना समझ में आया? Yes. तीनों अलगे का साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम समझा? क्लोरोफाइसी बोला तो ग्रीन अलगे, रोडोफाइसी बोला तो दैट इज रेड अलगे, फायोफाइसी बोला तो ब्राउन अलगे। अभी ना बच्चा लोग, हम लोग ना एक एक अलगे का डिटेल देखेंगे कि ग्रीन अलगे कैसा होता है, ब्राउन अलगे कैसा होता है। तो अभी जो डिवाइडेड पोर्शन है ना, अभी हम लोग उसका डिटेल देखेंगे। तो डन, यहाँ तक लिख के हो गया सबका? Yes. यस ओके, नाउ अभी तभी के जैसा एक दो लाइन छोड़ो और हेडिंग दो क्लोरोफाइसिन। अभी उसके कैरेक्टर्स लिखेंगे हम।
So first is chlorophyll. Done. In that first point, अब जो green algae है ना students आपके, they are mostly grow in fresh water. Okay? तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो जो मोस्टली होते हैं दे ग्रो इन फ्रेश वाटर, बहुत ही कम फ्यू इन ब्रैकिश वाटर. ब्रैकिश समझते हो स्टूडेंट्स? लिटिल सॉल्टी वाटर. ठीक है, मरीन कैसा होता है? मरीन वाटर जो होता है वो एकदम सॉल्टी होता है, राइट? और फ्रेश वाटर जो होता है वो बिल्कुल भी सॉल्टी नहीं होता. सो ब्रैकिश इन बिटवीन. डन, इतना समझ में आया? तो आपका जो ग्रीन algae they grow mostly in fresh water, few in brackish water and some in marine water. Clear? Yes. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो क्लोरोफाइसी आपकी ग्रीन algae होते हैं दे आर यूनिसेलुलर कॉमा रेटिकुलेट. समझते हो? ये वेनेशन आपको याद है, आप लोगों ने 10th में किया है, पैलर वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन. Yes. So reticulate means something like this type of cuttings, okay? अगर लीफ का आपको याद होगा. So this is a reticulate venation. तो यहाँ पे भी जो क्लोरोफाइट्स है they are unicellular, so reticulate, cup shape, ribbon shape, spiral and plate shape. तो यहाँ पे spiral shape etc. Done. अब यहाँ पे आपका जो ग्रीन algae है स्टूडेंट्स क्लोरोफाइट से, दे आर कॉलोनियल और फिलामेंटस. कॉलोनियल मतलब समझते हो स्टूडेंट्स? लाइक दे ग्रो इन अ कॉलोनी फॉर्म, मतलब जो दो चार है ना, मतलब एकदम प्रॉपर ऐसे ग्रो हो रहा है. फिलामेंटस मतलब कैसा होता है? इट इज लाइक इन दिस वे. फर्क समझ में आ रहा है दोनों को? कॉलोनियल मतलब एक प्रॉपर जैसे प्लांट्स होते कैसे, दैट इज इन दिस फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म. फिलामेंटस बोला तो कहीं पे भी बढ़ रहे हैं, स्प्रेडेड फॉर्म में रहते हैं. ये समझ में आया दोनों का डिफरेंस? फिलामेंटस मतलब स्प्रेडेड फॉर्म में, कहीं से भी मतलब वो बढ़ के ग्रो हो रहे हैं. कॉलोनियल बोला तो एकदम प्रॉपर प्लांट होते वैसे. Ma'am, your voice is breaking. So Yes. अभी क्लियर है? No. No. हेलो. कॉलोनियल फॉर्म कैसा होता है? प्रॉपर इन दिस वे, ओके. एंड जो दूसरा होता है फिलामेंटस फॉर्म, इट इज हो रहा है, ठीक है, कहीं पे भी किधर भी नीचे, मतलब ऐसा स्प्रेडेड फॉर्म में ग्रो हो रहा है. अभी वॉइस क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes. ओके. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉलोनियल फॉर्म एंड फिलामेंटस. तो यहाँ पे आपका जो ग्रीन algae है, इट कैन बी आइदर कॉलोनियल, कुछ प्लांट्स कॉलोनियल फॉर्म शो करते हैं, whereas some other show filamentous form. डन? समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज क्लोरोफिल. यहाँ पे हम लोग जो पिगमेंट की बात कर रहे हैं, पिगमेंट, ठीक है, पिगमेंट याद है? वहां पे ग्रीन algae, क्लोरोफिल हमने कैसे बोला? क्योंकि यहाँ पे क्लोरो नाम दिया, तो क्लोरो मतलब क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है आपका? बेसिकली इट इज अ ग्रीन पिगमेंट, राइट? तो ग्रीन algae, GA मतलब होता है ग्रीन algae कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट, या फिर आप ऐसे लिखो पिगमेंट. अब मुझे एक बात बताओ, क्लोरोफिल में आपको वो पता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ऐसा सुना है आपने? Yes.
हाँ, तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि आपका जो ग्रीन algae होता है, इट कंटेन्स द पिगमेंट लाइक chlorophyll A and chlorophyll B। और इसके बाद जो ब्राउन algae आप पढ़ोगे ना, वहां पे chlorophyll A and chlorophyll C है। सो दिस आर द डिफरेंसेस, मतलब तीनों algae का ये डिफरेंसेस है। इतना लिखे, समझ में आया? Yes. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ ग्रीन algae कंटेन्स सेलुलोज, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो, सेल वॉल कंटेन्स सेलुलोज। तो इसका सेल वॉल किसका मेडअप है? इट इज मेडअप ऑफ सेलुलोज। दूसरा वाला हमने क्या देखा था पॉलीसेक्राइड्स में? सेलुलोज एंड क्या याद है आप लोगों को? Glucose. वेरी गुड, Yes. डन। एंड द लास्ट इज सेल वॉल कंटेन सेलुलोज। उसके बाद में भी स्टोर्ड फूड, फूड स्टोर्ड होता है, वी नो दैट इन प्लांट्स, राइट? प्लांट्स और एनिमल्स में भी फूड स्टोर्ड होता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ फैट। इतना पता है? तो जो Yes. प्लांट्स है वहां पे हम अगर इसकी ग्रीन algae की बात करें तो जो स्टोर्ड फूड होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोर्ड फूड इज इन स्टार्च फॉर्म। अंडरलाइन कर लो इसको। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लाइक इट इज स्टार्च फॉर्म, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसके अलावा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। डन? यस। ओके, अभी यहाँ पे एक दो पॉइंट और है, फिर आपका जो ये ग्रीन algae इट विल गेट कंप्लीटेड। ठीक है, इतना लिखे हुआ सबका? किसी को कुछ डाउट? अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स जो ग्रीन algae होते हैं ना, एग्जांपल जैसे कोलेरा वगैरह है, तो ये दे आर ना यूनिसेलुलर, ठीक है? तो यूनिसेलुलर प्लस बहुत ही ज्यादा इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो अगर आप ग्रीन algae की बात कर रहे हो, सम मेंबर्स इन ग्रीन algae आर वेरी रिच इन प्रोटीन, ओके, बहुत ज्यादा उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। आर वेरी रिच इन प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा होता है किसी किसी प्लांट्स में, मेंबर्स में ग्रीन algae के, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड एज फूड, ठीक है? उनको फूड के जैसा यूज करते हैं। अभी कौन करता है? अभी आप नॉर्मली आपको झाड़ देंगे खाने तो आप खाओगे क्या प्लांट? नो। आपको, आप घर पे गए, आपको भूख लगी, मम्मी ने बोला चलो आज दाल राइस नहीं है, नॉर्मल खाना नहीं है, आप यही खाओ बैठ के। तो जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉट्स लाइक, जो स्पेस ट्रैवलर्स होता है वहां पे भी कांट कैरी दाल चावल रोटी भाजी, राइट? तो वहां पे कैसा होता है, फॉर सर्वाइवल, उनको सर्वाइव करना है, सो दैट इज व्हाई हाई प्रोटीन कंटेंट की वो चीजें कैरी करते हैं। तो जिसमें से एक आपका होता है ग्रीन algae ऑल्सो, ठीक है? तो ऐसे मेंबर्स जो बहुत ही ज्यादा रिच है प्रोटीन कंटेंट में, दे आर यूज्ड एज फूड, आर यूज्ड एज फूड बाय स्पेस ट्रैवलर्स। यहाँ पे लिख लीजिए आप, दे आर यूज्ड एज फूड बाय स्पेस ट्रैवलर्स। ये फूड है, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, फूड बाय स्पेस ट्रैवलर्स। तो ये पॉइंट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी जैसे ऑप्शन में समझ लीजिए आपको एमसीक्यू आया है, ऑप्शन में पूछ लिया कि कौन सा algae जो है इट इज यूज्ड एज फूड बाय स्पेस ट्रैवलर्स, तो आंसर क्या आएगा? ग्रीन algae। Green algae. यस, वेरी गुड, समझ में आया? Yes. ओके, नाउ लास्ट एक पॉइंट एंड देन एग्जाम्पल, ठीक है? अभी हमने देखा यहाँ पे स्पेस ट्रैवलर्स जो है दे यूज ग्रीन algae एज अ फूड आल्सो बिकॉज इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन कंटेंट। ये चीज भी याद रखना। अब उसको ही क्यों फूड में यूज करते हैं? उसमें भी वही वाले प्लांट्स जो कि जिसके पास प्रोटीन्स बहुत ज्यादा है,
समझ में आया? अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे हमने देखिए लिखा है कि जो स्टोर्ड फूड होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट। यहाँ पे जो कुछ मेंबर्स होते हैं ना, दे शो एडिशनल स्टोरेज बॉडी विच इज कॉल्ड एज पायरिनॉइड, ठीक है। तो अगर आपको पायरिनॉइड भी पूछा ना तो आपको फटाक से क्लिक होना चाहिए इट इज अ फूड स्टोरिंग बॉडी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जो स्टार्च आपने लिखा है ना, यहाँ पे स्टार्च स्टोर हो रहा है ना, लेकिन पायरिनॉइड क्या स्टोर करता है, इट स्टोर्स प्रोटीन। समझ में आया? फूड स्टोरिंग बॉडी यहाँ पे हमने स्टार्च लिखा है। अभी आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस Yes. Yes. ओके, तो यहाँ पे लिखो ग्रीन algae also shows food storing body called as pyrenoids। अंडरलाइन कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पायरिनॉइड्स, पायरिनॉइड्स। अब पायरिनॉइड्स में यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो इट स्टोर्स प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे नीचे हमने क्या लिखा था, स्टार्च, और पायरिनॉइड क्या स्टोर करता है, प्रोटीन। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि पायरिनॉइड्स आपका क्या स्टोर करता है, प्रोटीन। क्लियर है? यस अब लास्ट में एग्जाम्पल्स लिख लो। एग्जाम्पल्स क्या है ग्रीन algae के, कॉलेरा, स्पायरोगैरा, ये दोनों सिंगल सेल है, कॉलेरा प्लस स्पायरोगैरा, ठीक है। चारा, वोल्वॉक्स एक्सेट्रा। So these are the examples of green algae. यहाँ पे we done with all the characters of green algae. अभी जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, आज हमने जितना भी किया सारा का सारा रिवाइज करेंगे, प्लस विल जंप इनटू द ब्राउन algae। क्लियर है?